Are you ready? चलो चलो Nasima, Dr. Salam, are you ready? जी Sir, can I present a case? हाँ sure. So you should Nasima, start. wife of Yaqub, 41 years old, with a not formally educated housewife, resident of Qaidabad, which is 1.5 hour distance from the Index Hospital. Married since 25 years, with the first marriage of both couple. Para 7+0, all normal vaginal deliveries. Last childbirth 6 years back. Her last menstrual period was 2 months back, and the patient admitted through OPD on 15 April 2021 with a complaint of the continuous pervaginal bleeding since 2 months and irregular pervaginal bleeding since 2 months and the postcoital bleeding since 1 year. According to my patient, she was in the usual state of her health. Her age of menarche was 11 years back with a regular cycle and bleed for 5 days after every 28 days with a normal flow and no complaint of the. बेटा आपकी आवाज कम हो रही है थोड़ा सा. Doctor साहब, we can't hear you. Yes, sir. Sir, अब आवाज ठीक? हाँ. With no complaint of the dysmenorrhea, dyspareunia, postcoital bleeding, and the intermenstrual bleeding. Her bleeding pattern remains same with only complaint of the postcoital bleeding since last 1 year. She had a multiple episode of the postcoital bleeding. Bleeding is small in amount, 2 to 3 drops, and she didn't use a pad for it. It is fresh red in the color, and on and resolve on its own after 1 day, and she didn't seek any medical advice and not associated with vaginal discharge and vaginal dryness. Her age of first intercourse was early, and husband and wife are living together with a happy married life and with no extramarital affair. Husband having a no any history of the urethral discharge. 2 months back, she started menstrual cycle on expected date, but this time bleeding was heavy, and she didn't use any homemade pad. But she soaked trouser, which changed every 2 to 3 hours with flooding and clothes. Clothes are in small in amounts, and with the patient also complaining of the easy fatigability, lethargy, and difficulty in performing household activities, but there is no any history of shortness of breath, palpitation, and orthopnea. My patient having no any history of overdue cycle and urinary pregnancy test not done. Bleeding was painless and not associated with the lower abdominal pain, vaginal discharge, chronic cough, fever, hemoptysis, and there is no any history of tuberculosis. But her appetite and weight reduced, and there is no any history of perception of the abdominal mass and any pressure symptoms of urinary and bowel, and there is no any history of cachexic features and metastatic and cachexic feature. Patient having no any history of heat and cold intolerance, constipation, diarrhea, insomnolence, and headache. And there is no any history of the visual changes. Visual changes: abdominal discharge from the nipple, weight gain, hirsutism, acne, hot flashes, and night sweats, and mood swings. There is no any history of vaginal dryness, dysuria, and the depression. My patient not using any blood thinning agent and any hormonal treatment like HRT. There is no any history of petechiae, bruises, bleeding from any other body orifice, and no any history of bleeding disorder. Uh, a patient having no any history of any genital colonic cancer in her and her family. After 5 days of this bleeding, patient went to the nearby hospital where she admitted, and the blood and urinary test done, and hemoglobin found to be a low, and 1 pint of blood transfused, and emergency medication in IV form given to my patient. And patient also prescribed some oral medication in golden packet, 1 tablet twice a daily for 21 days, and also a history of the 2 doses of the parental iron infusion. Patient took a medicine compliantly, but her bleeding reduced but not completely stopped. Then she stopped medication for 20. Then she is
of medication for 21 days. After 21 days, she continuously bleeding. For this complaint, patient went to the tertiary care hospital in Karachi. Her medicine changed to other formula like Dufiston, 10 milligram twice a day. Uh, After taking this medication, her bleeding stopped and patient admitted for the ultrasound abdomen and plan for the surgery, but type of the surgery and further management not discussed with my patient. And two pint of blood, two pint of blood, and 2 pint of PCV arranged. Regarding past obstacle history, para 7 plus 0, all normal vaginal deliveries, home deliveries, there is no antenatal, intrapartum, and postpartum complication, and all babies are breastfed and vaccinated. Regarding her past medical history, patient having a hepatitis C positive, which is diagnosed 2 years back, and which is treated, but last PCR not done according to my patient history. Regarding surgical history, her BTL done 6 year back, and regarding family history, there is no any history of hypertension, diabetes, tuberculosis. There is no ovarian, uterine, colorectal cancer in my in patient family. Regarding personal history, her appetite reduced, but bowel habits are normal. Regarding socio-economic, husband is farmer, and our basic facilities of the life met with a difficulty. Sir, examination बता दूं? जरूर. On examining my patient, young age woman, pale looking, sitting on a bed comfortably, well oriented to time, place, and person. Her pulse is 94 beats per minute with a regular normal volume and rhythm. Her blood pressure is 110 by 70 millimeter of mercury. Temperature, patient afebrile, respiratory rate 18 breath per minute. Her JP node raise, her BMI is 23 kilogram per meter square. Anemia, patient mild anemia, jaundice, clubbing, chylomicronia, leukocytic, pedal edema, not appreciated, thyroid not enlarged, accessible lymph node not palpable. Breast examination, both breasts symmetrically. There is no any scar mark and no any mass palpable in all four quadrant. Regarding respiratory examination, normal vesicular breathing with no added sound, and S1 and S2 audible with no added sound, and epic speed palpable at fifth intercostal space. Regarding upper abdominal examination, abdomen on inspection, abdomen is scophied, moving symmetrically with the respiration, and I'm like a centrally placed in inverted with the scar mark of the tubal ligation, and hernial orifices are intact. Regarding per speculum examination, vulva normal distribution of the hair, and there's no blood, mucus, and discharge seen. On per vaginal and per speculum examination, cervix centrally placed, swollen, and finger-like projection seen protruding from the cervix, and with mild bleeding. On per vaginal examination, same finding noted. Cervix in cervix, finger-like projection seen and base not reachable. Uterus anteverted and bulky, mobile, non-tender, and lateral furnaces clear, and there is no any tenderness. Okay. Summarize करोगे बेटा? 41 years old, para 7 plus 0, last childbirth 6 year back, and having complaining of the continuous per vaginal bleeding since 2 months, and with the post-coital bleeding on and off. And on examination, there is a cervical and polyp noted on per speculum examination, and uterus bulky and lateral furnaces clear. Okay. मुझे आपने इसमें कहा है कि she has continuous vaginal bleeding for the last 2 months, right? Yes, sir. जिसको पेशेंट को कंटिन्यूस वैजिनल ब्लीडिंग हो रही है उसको आप फिर हाउ विल यू डिफरेंशिएट किससे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो रही है? Post-coital bleeding or per vaginal bleeding?
बेटा आपने दो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मुझे बताई है। जी सर। एक तो आपने कहा कि जी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, यस एंड सर। सेकंड आपने कहा कि जी के उसको पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग हो रही है। यस My सर। question is that any patient who has continuous vaginal bleeding, how No can sir, you the post differentiate? coital bleeding since 1 years. So she didn't bother to come to hospital. For the continuous vaginal bleeding, she went to the nearby clinic and diagnosed. तो फिर इसकी अगर आप पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर फर्स्टली आई राइट द सर वो तो हमने मैंने जो हिस्ट्री ली तो उसमें पता चला कि पेशेंट हैविंग कंप्लेनिंग ऑफ द पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग. बेटा आप जब हिस्ट्री तो चलो आपने ले ली, Sir, then हिस्ट्री तो आप according to the chronological order, first I write the post-coital bleeding since 1 year and continuous per-vaginal bleeding since 2 months. मेरा ख्याल है सीक्वेंस भी आपका जो होता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का, वो तो आपने एडजस्ट करना है ना, पेशेंट तो आपकी जाहिर है उसने अपने हिसाब से बताना है। वो तो, और जब आप प्रेजेंट करते हो एंड में, वो तो आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके ही करते हो ना, तो टाइम आपको दिया जाता है टू ऑर्गेनाइज योर फाइंडिंग्स एंड वॉट एवर। Okay, sir. ओके, अब आप इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे? First of all, I want the blood group and RH factor, and I want the complete blood count with the date in which I want the hemoglobin, total leukocyte count and platelets, and हम्म random blood sugar and urine complete examination in which I want the microscopy and biochemistry. Then I want the hepatitis B surface antigen and patient having hepatitis C positive, so I want the PCR in this patient. And the in liver function test I want the SGPT. अच्छा। And if I having a plan for the surgical management in this patient, then I want the investigation regarding general anesthesia like the chest x-ray. हम्म Then I want the renal function test. हम्म Then I want ultrasound abdomen and ultrasound pelvis. ओके, बट दैट्स इट। Yes sir, that's it. ओके, अच्छा, यू सेड कि जी के you wanted to have an X-ray chest for anesthesia purposes, Yes sir. right? Why do you want to have an X-ray chest? Why would anesthesia people want to have an X-ray chest? A patient having age of 41 years age in this age, we didn't need हम्म chest x-ray. एनी पेशेंट जो आपका 40 से प्लस उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं, ये कहाँ की गाइडलाइंस है? Sir, ye, our anesthesia doctors say like that we want the chest x-ray. A So patient having age above 45 years. अबाउट 45 ईयर्स ऑफ एज, तो ये तो 41 की है। 41 years है. सर इस पेशेंट में सर हम एचएस एक्सरे नहीं मांगेंगे. ये आपने तो मांग लिया, मैं तो वही तो पूछना, अब तक करवा के ले भी आए, उसका 500,000 रुपया भी पेशेंट का खर्च हो गया। अब मुझे बताओ आपने क्यों कराया? सॉरी सर अब नहीं करवाएंगे. फिर उससे कहोगे आप एक्सरे वापस ले जाओ। एक्सरे का कोई इम्पैक्ट नहीं होता पेशेंट पे। इज देयर एनी रोल ऑफ रेडिएशन ऑन दिस पेशेंट और एनीथिंग एल्स? यस सर. या आपका पेशेंट एक्सपोज टू द रेडिएशन. आप रेडिएशन वापस निकाल के आप पेशेंट को वापस कर दोगे? नो सर अगर करवा लिया तो देन इट्स ओके. करवा लिया इफ तो फिर that's okay. बिकॉज मे बी देखो, इन दिस पेशेंट. यू आर बिकमिंग अ कंसल्टेंट, एंड अगर आपको कल आके कोई भी कहता कि जी आप इसका इन्वेस्टिगेशन कर दोगे या करवा लें, तो आप क्या आंखें बंद करके कहोगे हाँ जी ठीक है? नो सर. अदर देयर इज सम, उसका साइंटिफिक रीजन होता है तो करते हो।
Was there any chest finding on your auscultation of the chest? No, sir. क्या सॉरी आपकी बात नहीं है मुझे. So there is no any significant finding in respiratory examination. अच्छा, why did you want to do the After, RFTs also? चलो चलो वो तो हो गया. Let's move on to RFTs. sir, if I sir, इस patient में if we remove the polyp and then we send for the histopathology. After histopathology, maybe these investigation help for further surgical management in this my patient. नहीं बेटा, अभी तो हम वहां तक तो पहुंचे ही नहीं. अभी तो हम इनिशियल पेशेंट का वर्कअप आया है. आपने कहा है कि जी ये सारी मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा. अभी तो हम उसकी इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैव वी डन एनीथिंग फॉर द पॉलिप येट? Sir, our management is the surgical management of this cervical, this endometrial polyp, बेटा मैं including under उससे general anesthesia. आई एग्री. मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ. आपने मुझे एनेस्थीसिया की ही हेडिंग के अंदर एक्सरे कहा और आरएफटीज कहा. Renal function test पे. रीनल फंक्शन, व्हाई डू यू वांट टू डू रीनल फंक्शन टेस्ट? बेटा देखो, जब Most भी आप drugs. जाते हो, आप कहीं भी, एनीबडी हु, चाहे आप अपना किसी भी फोरम में बैठ के कोई भी बात करते हो या करना चाहते हो, तो इन्वेस्टिगेशंस की मुझे तो उसकी रीजन और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन चाहिए. एंड हियर आई एम आस्किंग यू कि व्हाई आर वी डूइंग आर, क्योंकि हर Most इन्वेस्टिगेशन का कोई मकसद होता है. yes, most anesthetic drug excreted from the kidney, so we want the renal function test before So surgery. that any patient who is going under anesthesia, Yes, so all of them have RFT test done, yes, sir. For major चाहे वो surgeries. minor test. So are we planning this patient for major surgery right now? No, sir. First minor surgery and then plan for the major surgeries if there is any complication. अगर हमने फिर माइनर सर्जरी करनी है तो फिर मुझे उसमें एक्सरे चेस्ट और आरएफटीज का जस्टिफिकेशन बताओ फिर आप. Sir, for a minor procedure, there is no need for the renal function test and the chest X-ray right now in this patient. तो फिर आपने क्यों करवाए? Why did you have them done then? अच्छा, अब आगे मुझे बताओ, why did you have hepatitis C का PCR done? Because right now we didn't no patient is fully treated or not. So we want the PCR in this patient, and we plan for the Did, did she take any treatment for hepatitis C? yes sir. पेशेंट ने कहा था कि बेटा मुझे आप अपना इंजेक्शन जो माइक है करीब ना रखो. सॉरी बताओ. सर पेशेंट ने कहा था कि मुझे इंजेक्शन जो है ना वो लग चुके हैं, लेकिन आफ्टर इंजेक्शन जो लास्ट पीसीआर Did करवाते हैं you वो ask? नहीं हुआ. Okay. Did you ask how many injections, कितनी ड्यूरेशन में, कब लगे? नो सर, वो तो पेशेंट इस तरह नहीं बता पाई कि नहीं, उसको कोई नजर तो होगा कि जी उसने महीना लगवाया, 2 महीने लगवाए, 9 मंथ लगवाए, साल लगवाए. सर इतनी हाँ डिटेल मैंने नहीं पूछी. उन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन लगे थे और वो मतलब ट्रीट हो चुका था. Okay. What are the roles of LFTs? Because a patient having a hepatitis C positive, so I want to see the liver status. Okay.
अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपका इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? Again, move up to management part now. First differential diagnosis is the endometrial polyp Mm-hmm. and cervical polyp. Cervical polyp, And endometrial hyperplasia. endometrial hyperplasia. But I can't hear you. So in my first differential is endometrial polyp, cervical polyp, endometrial hyperplasia, and carcinoma in situ भी सर हम इसमें रख सकते हैं because patient Which carcinoma? sir sin Sorry? intra sir cervical intraepithelial neoplasia. Okay, see again. Okay. Yeah. And और chronic cervicitis. अच्छा, Sir, patient, I have a TB's report. Can I share? बेटा पहले मेरी आपकी डीडी तो पूरी हो जाए कि यू थिंक डीडी इज इनफ. सर यही है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैंने बताया. ओके गुड. अच्छा अच्छा, अब आप मुझे इन्वेस्टिगेशंस के बता दो आप. Sir, in I have ultrasound finding in which अल्ट्रासाउंड आपका अभी नहीं होगा, बाकी सारे फाइंडिंग्स बता दो फिर हम अल्ट्रासाउंड पे आ जाएं. सर इसकी मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो प्री ट्रांसफ्यूजन जो हीमोग्लोबिन है सर वो तो मुझे नहीं पता जो रिसेंट हीमोग्लोबिन which is 9.1 gram per deciliter total leukocyte 12 and platelets 3. बेटा आपकी आवाज कट रही है. Sir, hemoglobin 9.1 after transfusion, gram per deciliter, total leukocyte count 12, and platelets 395, and blood group A positive, and our red cell indices are normal after transfusion. ओके. सर इनकी मेरे पास ये एक स्कैन फाइंडिंग है और सर ये एक सीबीसी रिपोर्ट एंड ब्लड ग्रुप था. चलो ठीक है. अब सर आप कैन आई मैनेज शेयर कैसे द करोगे? अल्ट्रासाउंड हाँ फाइंडिंग सर अब शेयर कर लूँ देन. जी. In which uterus is bulky 9.8 5.8 into 6 centimeter, endometrium appear dilated 1 centimeter with showing single hypoechoic area measuring 2.3 and 0.7 centimeter बेटा व्हाई possibility. यू कीप पुटिंग योर माइक अवे? देखो Okay sir, बेटा हमें sorry आवाज sir. नहीं आती. यू नीड टू. Endometer appear dilated 1 centimeter showing single echoic area measuring 2.3 into 0.7 centimeter possibility of the endometrial polyp. ओके. अच्छा मुझे आप ये बताओ, ये जो आपकी डीडी के अंदर आपने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, पॉलिप और सीएन रखा था, इवन फॉर दैट मैटर क्रॉनिक सर्वाइटिस रखा था, इसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन क्या कराई है इनकी सॉइल अल्ट्रासाउंड की? बेटा वी कांट हियर यू. सॉरी सर माइक म्यूट था. सर जब हम इसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे जो हम इनकी पॉलिपेक्टमी करेंगे देन आई विल गो फॉर द endometrial sampling and along and service is suspicious looking then I will go for the cervical biopsy. अच्छा. और सर पेशेंट हैविंग अ पॉलिप्स हो तो सर पेप स्मीयर इस टाइम तो हम नहीं करेंगे इस पेशेंट का. आप स्मेयर क्यों नहीं करोगे?
सर वो ability to touch है पेशेंट। Virginity और बायोप्सी कहाँ से लोगे आप इसकी सर्वाइकल? सर आफ्टर पोलिपेक्टमी देन भी सर जो भी सस्पिशियस एरिया है उससे हम सर्वाइकल बायोप्सी लेंगे। आपको स्पेकुलम एग्जामिनेशन में कोई सस्पिशियस एरिया नजर आया था? बस सर्विक्स जो है ना सर वो स्वैलन थी। सर्विक्स स्वेलन होना सस्पिशियस एरिया, व्हाट्स द डिफरेंस? It doesn't mean that patient having any sin and like that. Then we apply the Lugol's iodine sir हम apply करेंगे। Then we take the biopsy from that area. अच्छा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और तरीका भी है मेथड? Sir, colposcopic, if we have a facilities available, then we go for the colposcopic examination of a cervix. अच्छा, सर उससे भी हम कर सकते हैं। ओके। how do you do colposcopy? So in our setup, we didn't have a facility of the colposcopic examination and आपने कहीं जहाँ पर पढ़ा भी नहीं कि फैसिलिटीज कोल्पोस्कोपी है। क्या होती है और किस तरह? यस सर। हाउ डू वी डू कोल्पोस्कोपी का आपने कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं? वो सर हमने देखी नहीं है। पढ़ा हुआ है कि देखिए, व्हाट इज द पॉलिप को किस तरह हैंडल करोगे आप? सर अंडर जनरल एनेस्थीसिया सर general anesthesia patient shifted into the uh, then we go for the uh, then we go up पहले एनेस्थीसिया देंगे, बाद में no sir patient तो को sir after anesthesia all workup बाद में करेंगे। and giving anesthesia then we go for वो the तो आपने करा लिया। per vaginal sir per मुझे vaginal आवाज नहीं आ रही examination करेंगे same finding no if same finding noted then we do the polypectomy है। अच्छा, ओके। and hold the polyp with the sponge holding forceps and after and twist it around and then remove the हम्म। polyp and then we send this polyp for the histopathology and then we take the endometrial sampling. हाउ डू वी टेक द endometrial sample? We take a sir सिंपल जो डायग्नोस्टिक डीएनसी है वो सर वही करेंगे। कोई और मेथड भी है? Gold standard is hysteroscopic guided endometrial sampling and gold standard तो hysteroscopic guided है but if we facility is not available then we go for the simple diagnostic बेटा DNC. आपका माइक क्यों मूव कर जाता है? इट्स काइंड ऑफ। सर आई हैव अ बेबी तो वो सर मेरे माइक को पुल करती है तो चलो, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता यहाँ बैठ के। सॉरी सर। सर अब आवाज आ रही है। Sir, gold standard is hysteroscopic guided endometrial sampling and then we go for the polypectomy and a cervical biopsy at that time and then we send for the histopathology and after histopathology further management depend on
what is the histological finding. अगर गोल्ड स्टैंडर्ड ये है तो फिर देन व्हाई आर वी डूइंग डीएनसी एंड पॉलीपेक्टमी इस तरह कर रहे हैं? So in our hospital, we didn't have facilities to go for a hysteroscopic in every patient, every diagnosis. ओके, आपने कहा इन एवरी पेशेंट, बट डू यू हैव द फैसिलिटी अवेलेबल? Sir, we have for the exam purpose and like that, we see only 1 and 2 hysteroscopy in under general anesthesia, but we didn't do in every endometrial sapling. What is the advantage of doing hysteroscopy in this case? In this patient, first we go for the hysteroscopy because is the gold standard and directly visualization of the endometrium. And if there is any focal lesion, then we take the biopsies, and we also do a polypectomy under. सर वो हमें सारा नजर आ रहेगा कि पॉलिप कहाँ पर है, and then remove a polyp easily. अच्छा, ओके, चलो अभी वी हैव अनदर 2-3 मिनट्स रह गए आगे. लेट्स सपोज का रिपोर्ट आपकी बेनाइन पॉलिप आ जाती है, हाउ विल यू प्रोसीड? Then I will reassure my patient, and this finding is not cancer like. Then we treat presenting complaint in this my patient. जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमने इसकी कंटिन्यू की सर, वही हम इसकी कंटिन्यू करेंगे, एंड रिव्यू दिस पेशेंट आफ्टर 6 मंथ कि पेशेंट के जो है ना वो कंप्लेंट सबसाइड हो गई या नहीं. एंड आफ्टर रिमूविंग द पॉलिप पेशेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? In medical treatment, we give progesterone in my patient. ओके, किस तरह दोगे आप? सर हम परमिलेट एन देंगे 5 मिलीग्राम 1 tablet TDS, and along with the capsule transamine and the postanthol. अच्छा, And review my patient after 6 month along with the 6 मंथ के CBC बाद report. आते हैं, शी हैज स्टिल कंप्लेंट. सेम बात, मुझे रेगुलर ब्लीडिंग अभी भी हो रही है एंड आई एम शॉर्ट ऑफ ब्लड. पेशेंट का सर स्कैन कराएंगे फॉर द सीइंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. स्कैन उसका नॉर्मल आ जाता है. सर हम इसको रीअश्योर भी कर सकते हैं. देन वी आल्सो गो फॉर द सर पेशेंट को जो है ना हम ओसीपीस पर भी रख सकते हैं इफ नॉट सेटल विद द टैबलेट प्रोजेस्टेरोन. तो आप तो 6 महीने के बाद आइए, अब फिर आप उसको उसी पीस पे डाल दोगे. जी सर, हम इसको जो है ना वो सर चीप मेडिकेशन है, एंड आल्सो वी हैव ऑप्शन फॉर मरीना इफ पेशेंट अफोर्डेबल. देन नहीं, आप क्या करोगे? अब 6 मंथ पेशेंट आई है, दोबारा उसकी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट विल यू डू? सर पेशेंट को हम रीअश्योर करवाएंगे, करा and दिया तो this bleeding is affect the quality of our life. Then we go for the insertion of the marina. ओके, आपने मारीना रख दी, फिर क्या करेंगे? सर इस पेशेंट को रिव्यू करेंगे एवरी 3 to 6 मंथली इन ओपीडी. चलो जी, फिर 3 मंथ्स के बाद फिर वापस आ गए कि जी मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई. If sir a patient having a family complaint, then we go for a definite treatment, and we discuss this definitive. डू यू थिंक कि ये वो पेशेंट है जिसको फैमिली की जरूरत है? No sir, para 7+0. तो मुझे इसका बताओ फिर क्या करो, साथ उसके अब We discuss a definitive treatment. हीमोग्लोबिन आई है वो 4 आई. Hemoglobin. हाँ जी. And sir, this bleeding is affect her quality of her life, and her hemoglobin drop into the
severe anemia, so we correct the anemia. Then we discuss a definitive treatment in a form of the total abdominal hysterectomy. And तो सर इसकी हम total abdominal hysterectomy कर लेंगे, because that bleeding is severe, that a patient having a low hemoglobin. तो इसका आपको फैसला करते हुए व्हाई डिड इट टेक यू अ 1 year टाइम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी फर्स्ट सेटिंग में ही हमें ये डिस्कस करना चाहिए था कि if we if she go for the medical treatment, then definitely this bleeding is either reduce or not, or either आपने stop तो or not. बेटा आपने तो डिस्कस नहीं किया ना, आपने तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट डाल के पहली बार में घर भिजवा दिया। जी सर, मैंने डिस्कस नहीं किया इससे। चलो लेट्स सपोज अगर हमने स्टेक्टमी करना है तो क्या किस कौन सी करोगे स्टेक्टमी आप इसमें? सर सिंपल टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करेंगे। व्हाई टोटल ब्राउन स्टेक्टमी? इसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं पेशेंट को, आइदर सब टोटल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, टोटल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। यू वांट टू डू अ सब टोटल स्टेक्टमी इन दिस केस? चलो ठीक है, वो कर दी। गिव ऑप्शन। उसके 2 साल के बाद दोबारा आ गई ब्लीडिंग के साथ, फिर क्या करोगे? सर देन वी फाइंड द कॉज कि उनकी जो ब्लीडिंग कॉज है वो क्या है, आइदर सर्वाइकल तो नहीं है। उनकी सर्वाइकल ग्रोथ नजर आ गई आपको, लेट्स सपोज फिर क्या करोगे? सर फर्स्ट सेटिंग में तो इनकी देयर इज नो एनी सस्पिशियस एरिया, वी आल्सो टेक द सर्वाइकल मैं दो बायोप्सी। साल के बाद की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। आपने सब सर टोटल देन वी डिस्कस if there is a cervical any growth, then we send this growth for the histopathology. हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर वो सी कैंसर सी सर्विक्स आ जाता Sir, then we go for the expensive test like a CT scan to stage the cervical carcinoma. है। अच्छा स्टेज आपकी होगी, लेट्स सपोज स्टेज 2 आ जाती है। सर उनकी देन मल्टी डिस्प्लिनरी टीम इन्वॉल्वमेंट करेंगे एंड रिव्यू फ्रॉम द ऑन्कोलॉजी टीम, एंड देन we देन send this patient to the oncology department for the radiotherapy. और फिर साथ कह देना कि मेरे पास वापस ना आना, ये भी कह देंगे? No sir. नहीं, अब तो आपने और क्या करना है उसका? यू वांट टू डू समथिंग एल्स टू दिस पेशेंट नाउ? सर फर्स्टली इनकी जो है ना डिफाइंड मैनेजमेंट होनी चाहिए थी। चलो टाइम एंड पूरा हो गया, फिर बच गई, दैट इज इट। अब मुझे आप बताओ कि आपका ये वाइवा कैसा हुआ? सर बहुत ही बुरा। क्यों बुरा हुआ? फर्स्ट सर जो हमारे पास पेशेंट हम ओपीडी पर विद सेम विद दिस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आती है, देन वी डिस्कस द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एंड जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो एट द टाइम डिस्कस करनी चाहिए थी। तो वो आपने क्यों नहीं की? सर आम रूटीन में तो सर हम करते हैं पेशेंट से, नहीं, जो एग्जाम लेकिन में फॉर आते जो एग्जाम में पेशेंट आता है वो पेशेंट क्या खास वाला आता है? नो सर, जो एग्जाम होता है सर उसमें फिर हम भूल जाते हैं कि क्या भूल जाते हैं कि जो आपने जो 4 साल किया है वो सारा कुछ गलत किया? नो सर वो तो सारा सही किया, लेकिन जो एट द राइट टाइम एग्जामिनर को आंसर करना चाहिए था वो सही नहीं किया रिगार्डिंग द करंट पेशेंट। देखो, आपकी जो हिस्ट्री थी दैट वाज ऑल राइट, आई वुड से कि जी इट वाज अबव एवरेज। आपने काफी सारी चीजें जो हैं
वो उस पे यू कवर्ड देम एंड दैट इज ऑल राइट। और ये आपका जो केस था, इट वाज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। पहली बात, आजकल के हालात के अंदर जो आपके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें यू मेक श्योर कि आप कोविड का पीसीआर जिसको भी आपने थिएटर में लेके जाना वो मिस नहीं होना चाहिए। विद दीज आजकल के हालात के अंदर, एंडेमिक के अंदर, आपको उसकी कोविड की इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी पार्ट ऑफ द रूटीन जनरल इन्वेस्टिगेशन जो आजकल आपकी आ गई। जी सर। दूसरा जो आपका रह गया एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, चेस्ट एक्सरे, आरएफटीज, वो कांट बी जस्टिफाइड एट द एज ऑफ दिस अनलेस कंट्री कोई सिम्टम्स आ जाते हैं। उसकी यू नीड टू बी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन कि आप उसका एक्सरे क्यों करा रहे हो, या आपको कोई फाइंडिंग मिलती है या कोई सर्टेन एज है। आज ही जाके आप एनेस्थीसिया की गाइडलाइंस पढ़ के उसमें देख लो कि वो किस एज पे कौन सा सिस्टम, क्या कहते हैं कि जी ईसीजी कब होगी, एक्सरे चेस्ट कब होगा, और आरएफटीज की जरूरत कब होगी। और सिर्फ आप ये कहो कि जी हमारे एनेस्थेटिस्ट कहते हैं कि जी, आपका एनेस्थेटिस्ट कहेगा कि जी मुझे तो इसका फलां 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 टेस्ट भी चाहिए, आप कराना शुरू कर दोगे। एज अ गुड, जब आप कंसल्टेंट बन रहे हो, इट इज योर ड्यूटी टू मेक श्योर कि आप जो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर रहे हो पेशेंट्स को वो जस्टिफाइबल है, और वो आप उनको वजह इसलिए दे रहे हो उससे आपकी मैनेजमेंट में फर्क पड़ेगा। तीसरा, जब आपने कहा कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आपने पेल्विक दोबारा एग्जामिनेशन की तो आपने पहले कहा कि इट्स द सेम थिंग। उस पे जब आप करते हो तो यू हैव टू टेल कि आपको मैस फील हुआ है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, फाइबल है, और जब आपने उसके अपनी फिंगर स्टॉल निकाले तो उस पर क्या ब्लड ब्लीड टू टच है कि नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। और दूसरा, आप उस पे एट द व्हाट लेवल पे कहाँ पे है, कैन यू सी इट एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल लॉस, कि हमें से जो मुझे आई कैन प्रोजेक्ट इट, इमेजिन इट कि ये आपका जो केस है कि आपने स्पेक्ट्रम डाला, सर्विस आपको पूरी नजर आ रही है, होल सर्कमफ्रेंस, बीच में प्रोट्रूडिंग एक पॉलिप सा नजर आ रहा है। अब यस। वो पॉलिप जो है उसको फर्दर भी डिवाइड करना बड़ा जरूरी है कि जी आपको जो जितना नजर आया है वो कितने सेंटीमीटर्स का है। उसके ऊपर कोई आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं कि बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है, या जब आपने उसको मूव मोबाइल किया, स्पेक्ट्रम डाला तो उसमें से ब्लीडिंग आती नजर आ रही है। आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि जी आपको उसकी स्टॉक या उसका पेडिकल पता नहीं है कि जी इट इज ओरिजिनेटिंग, क्योंकि आप तो देख रहे हो स्पेकुलम से कि ये आइदर पॉसिबिलिटी है कि वो सर्वाइकल पॉलिप है कि उसकी पेडिकल ऊपर लगा हुआ है और सर्विस के थ्रू बाकी आ रहा है, क्योंकि सर्विस की तो एक सर्टेन लेंथ होती है ना, और दैट मीन्स कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान में भी उसका हो सकती है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम दैट। अगर वो होगा तो वो सर्वाइकल पॉलिप होगा, या इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी से के थ्रू आ रहा है। दूसरा, जो नॉर्मली आमतौर पे एंडोमेट्रियल पॉलिप से होते हैं उसमें बहुत स्पेसिफिक किस्म के होते हैं कि जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो उसको स्वेर किस्म का डिस्मेनोरिया होता है। रीजन के वो अगर यूट्रस के अंदर कैविटी के अंदर चला है तो जब वो यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट पुश इट आउट, पेशेंट हैव लॉट ऑफ लिकी पेन विद दैट। उसकी कोरिलेशन आपको डिफरेंशिएट करने के लिए सर्वाइकल है कि एंडोमेट्रियल की वो करेंगे। ठीक। तीसरा, एक पेशेंट जो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर से आ रही है, इट इज अनइमेजिनेबल अनइमेजिनेबल कि आप उसकी सब टोटलिस्टेक्टमी करके उसे छोड़ के वापस आ जाओगे। वो तो कि नहीं बनता, वो तो दैट इज मतलब है कि डूइंग, इवन अगर उसका बाकी सारा स्मेयर आपका नॉर्मल भी आ जाता है, लेकिन आपने खुद कहा कि जी सर्विक्स जो है उसकी स्वोलन थी। नॉर्मली उसको स्वोलन नहीं कहते, उसको हाइपरट्रोफिड कहते हैं। जब हाइपरट्रोफिड है तो दैट मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ, वो चाहे इन्फेक्शन की वजह से है, चाहे सीएन की वजह से है, चाहे सीए की वजह से है, लेकिन एट फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट जिसकी पहले सारी एसपीडीज हुई हुई हैं, डूइंग अ सब टोटलिस्टेक्टमी, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं भी किसी भी फोरम पे जाके जस्टिफाई कर सकते हो। इस पे जो आप बहस मैं जो पूछ रहा था कि जी आप इसकी क्या करोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिसमें आप उसको चेक करके देख सकते थे कि जी व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉर एनी हिस्टेक्टमी। आपका इसमें माइक जो है ना जो है, लेप्रोस्कोपिक भी है
एंड जो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है, लेप्रोस्कोपी है, और लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टमी। कुछ और? रिमेंबर दिस कि दिस इज अ पैरा 7+0 पेशेंट, और ऐसा पैरा +0 विद साइज दिस साइज का नॉर्मल यूट्रस का, उसकी वजाइनल हिस्टेक्टमी को सोचना आपने जरूर। मैं नहीं कह रहा कि आपने करनी है कि नहीं करनी, आपने सोचना जरूर है। फर्स्ट foremost बेस्ट रूट फॉर एनी इज नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी जो आप इसकी वजाइनोस्टेक्टमी होगी। वहां आप सिंपल हिस्टोस्कोपी तो कर नहीं रहे, तो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कैसे करोगे? वो तो ये है कि या तो किसी की फैसिलिटी है जो है वो जाके वो करेगा। सो कमिंग बैक टू दैट कि अगर इसमें जो मेरी आगे जाके मैं सोचा था कि आपसे मैं सवाल जाके वहां तक तो खैर नौबत ही नहीं आई कि आप जो हिस्टेक्टमी है कौन सी प्रेफर करोगे, जिसमें आप उसको असेस कर सकते हो फॉर वजाइनल हिस्टेक्टमी कि जी उसका अगर प्रोलैप्स है जो पैरा 7 का, आई एम श्योर कि होगा, नॉर्मल साइज यूट्रस है, तो इट कैन बी डन पॉसिबिलिटी। सेकेंड ऑफ कोर्स लेप्रोस्कोपी होती है। थर्ड ऑप्शन इज ऑफ कोर्स फिर आगे आपकी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। But doing a subtotal hysterectomy in this kind of cases is a suicide. तीसरा एक मेथड इसमें ये भी हो सकता है, जो एक रूट बड़ा आसान से आप ले सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इसमें, जिसमें आपने अपनी डाल के ये डाल दिया, लेट्स सपोज पॉलिप भी डाल दिया, सीआईएन भी डाल दिया, हाइपरप्लेजिया भी डाल दिया, उसकी इन्वेस्टिगेटर के अंदर भी आप कह सकते हो कि जी कि आप इसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करोगे अगर पॉसिबिलिटी है उसकी, और साथ पॉलीपेक्टमी करोगे अगर पॉसिबिलिटी है आपकी कि सॉरी मेरा ज़हन यहाँ चला गया था। अगर पॉसिबिलिटी है ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोस्कोप है, तो फिर आप इसकी हिस्टोस्कोपी, पॉलीपेक्टमी, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, एंड ऑफ कोर्स अगर सर्विक्स की आपको बायोप्सी आपको लगता है कि वहां से कोई है, और अगर आपको इसको क्योंकि पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग है इस पेशेंट को, तो यू नीड टू मेंशन कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर पॉसिबिलिटी होगी तो कॉल्पोस्कोपी एंड उसकी की जा सकती। फर्स्ट रिव्यू यू में डोंट पेप लेट इट स्मीयर गो ले सकते थे। बेटा। एनी पेशेंट हु इज ब्लीडिंग एट दैट स्टेज, so what would pap smear will come out to be? pap smear ड्यूरिंग ब्लीडिंग ले सकते हैं आप? सर ले तो सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं आएंगे उसके। हाँ, तो जब रिजल्ट ठीक नहीं आएगा तो फिर आप किस तरह आप इसकी मैनेजमेंट करोगे? देखो ना, स्मेयर आप क्यों ले रहे हो? स्मेयर आप ले रहे हो टू रूल आउट सीआईएन, आई सपोज। ऐसा ही है ना? फिर इसका सेकंड स्टेप है क्या, क्योंकि आपका ख्याल है कि प्रॉब्ली इसकी ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है? सर पॉलिप से है, एंडोमेट्रियल। पॉलिप से है। तो अगर फिर हम इसकी जब ये पॉलीपेक्टमी लेट्स सपोज किसी भी रूट से, सुस्कोपी से कर लिया, उससे करके उसके बाद इसकी ब्लीडिंग करेंगे। अगर ब्लीडिंग इसकी रुक जाती है, फिर आप इसका स्मेयर लेके भिजवा के देन वी कैन प्रोसीड एज वेल। एंड तीसरा बेटा, मुझे ये बात बताओ, जो पेशेंट एक इतने सालों से प्रॉब्लम में है, और वो इतने प्रॉब्लम में है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुकी हैं, उसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट में डाल के भेज दिए। मेडिकल तो ऑलरेडी वो ट्राई करके वो करके उनसे सब आके आई है वो। हाउ कैन यू जस्ट दैट? फैमिली उसकी कंप्लीट है नहीं, कुछ ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो फर्स्ट चॉइस वुड बी इन सच केस वुड बी अ परमानेंट सर्जिकल प्रोसीजर। फर्स्ट चॉइस, अनलेस कैन पेशेंट कहे कि जी 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 मैं तो ये नहीं कराना चाहती जी, आई डोंट वांट टू पार्ट विद माय यूट्रस फॉर एनी रीजन। फिर उसके बाद ये है कि जी जो उसकी आपकी क्या कहते हैं पॉलिप की, या उसकी आ जाएगी। इवन अगर आपका पॉलिप बेनाइन भी आता है, फिर भी आपकी हिस्टेक्टमी के लिए आप बड़ी सिंपल सी इसकी बात बता देते हो कि लेट्स रिपोर्ट आपने पहले की, सर्विक्स आपका पॉलिप आ गया बेनाइन, कोई और पैथोलॉजी नहीं आई, लेकिन ये वो पेशेंट है जो 41 ईयर्स की एज है,
पैरा 7 है और उसकी हीमोग्लोबिन इतनी फॉल कर गई थी, उसके बाद वो ली है। शी इज एक्चुअली नॉन कंप्लाइंट विद हर मेडिकेशन जो पहले उसने लेती थी, कभी 2 दफा ली, कभी 1 दफा ली, जब बंद हो जाती है वो छोड़ देती है। तो इन दिस केस माय फर्स्ट चॉइस वुड बी अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस बाय व्हाटएवर मींस। अगर वो रिफ्यूज करे कि जी मैं तो मेडिकल नहीं करना चाहती, मैं सॉरी सर्जिकल प्रोसीजर नॉट इंटरेस्टेड, देन ऑफ कोर्स दिस थिंग। एंड नंबर 2, how can you send this patient on a medical treatment and then review it after 6 months time? You can't do that. तो उसको जब हम आप तो मेडिकल पे पेशेंट को डालोगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं ना, जिसने पहले कभी नहीं ली वो जी पेशेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट। बेटा आपने खुद कहा है कि टैबलेट पहले डिफोस्ट्रॉन भी लेती रही है, टैबलेट वो 2 टाइम डेली भी लेती रही है। ये आपकी हिस्ट्री के अंदर था, ये तो आपकी हिस्ट्री के अंदर था, मैंने तो नहीं बताया, ये तो आपने मुझे बताया। नो सर, मैं इस पेशेंट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इस कंप्लेन के साथ हमारे पास पेशेंट आती है, देन फर्स्ट वी ट्राई अ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिव्यू आफ्टर 3 to 6 मंथली, ऐसे बेटा हम करते हैं। नॉट नॉट इन दोज केसेस जिसकी हीमोग्लोबिन फॉल हो जाए और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मल्टीपल लग चुकी, ओके सर। दैट इज नॉट द आइडियल वन। अनलेस कैंटल पेशेंट कहे कि जी मैं नहीं कराना चाहती, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। आप पेशेंट को रिव्यू करो ना, व्हाई यू लुकिंग एट द डिजीज, लुक एट द पेशेंट, उसकी प्रॉब्लम क्या है। और वो इतनी अगर प्रॉब्लम सिवियर हो गई है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक होती शुरू हो गई है, तो देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। आपकी एक आदमी जिसकी हीमोग्लोबिन को लेस वो आपकी होती, उसको कोई होते, ब्लीडिंग के सारे इशू थे, और वो कीन होती कि जी मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तुम करें। डोंट टेक मी इन दिस सेंस कि जी हर पेशेंट को आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करके जल्दी से अपने फारिग कर देना। ये तो बातें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी। पर दिस वन पेशेंट ऑफ योर्स जो आपका है, जो उसको जिसको, क्योंकि डोंट रिमेंबर दैट पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग फॉर 1 ईयर देयर हैज टू बी सम सिग्निफिकेंटली समथिंग रॉन्ग। उसमें हमने पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सारी इवैल्यूएशन करनी है। इसमें फॉर्चुनेटली आपको एक पॉलिप नजर आ गया कि जी मे बी पॉलिप जो है वो कर रहा है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा पॉलिप था जो साल पहले भी लेट्स सपोज कैन इमेजिन अगर है वहां से और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, फिर इस किस्म के पॉलिप की टिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसके साथ इरेगुलरिटी डेफिनेटली आ जाएगी। विद दीज काइंड ऑफ पॉलिप्स इट्स नॉट कि फिर रेगुलर सिर्फ उसको मेनोरेजिया होगा, उसमें पॉसिबल थोड़ा सा वो स्लफ ऑफ हो जाता है जो बिल्कुल प्रोट्रूड कर रहा है आपकी उसके साथ। उसके अलावा you need to keep things very simple, एक। नंबर 2, डू रिमेंबर दैट ऑल ऑफ यू जो भी मेरी बात सुन रहे हो इस टाइम, यू प्रॉब्ली आर वर्किंग इन सम गुड इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपके माशाल्लाह अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे आर डूइंग ओके और ट्रीट होके घर खुशी खुशी जा रहे हैं। आपने उसी चीज को ज़हन में रखते हुए यू मेक श्योर ठीक, हाँ ठीक है आपके पास ये फैसिलिटी नहीं, कॉर्पोस्कोपी की नहीं, आपके पास एसिस्कोपी की नहीं, फिर उसमें ऑप्शन आ जाती है एग्जाम के अंदर। आपने एज अ पढ़ा लिखा कैंडिडेट और अ गुड कंसल्टेंट यू नीड टू मेंशन देन कि जहाँ पे अवेलेबल होगा हम ये कर देंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड ये है, पर जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वो नेक्स्ट स्टेप ही हो जाएगा। तो अगर उसको सिंपल रखोगे तो वो कर देंगे। हाँ आपको कॉल्पोस्कोपी के स्टेप्स आने चाहिए क्योंकि वो आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, आपको हिस्टोस्कोपी के स्टेप्स आने चाहिए क्योंकि वो आपका टोक्सटेशन आ सकता है। तो ये आप करना, वहाँ जस्टिफिकेशन करना कि जी हमारे डिपार्टमेंट में तो साल में हमने सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए हमें वो जब कोर्स होता है हमारे डिपार्टमेंट तब वो निकाल के हमें दिखा देते हैं, बाद में उसको उठा के अलमारी में रख देते हैं। दैट डज नॉट जस्टिफाई यू, दैट इज योर ड्यूटी कि यू मेक श्योर कि अगर ये दीज थिंग्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड्स तो आपको उनको मैनेज करना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए। यू डू दैट। तीसरा, देखो बेटा ये हम कोर्स कर रहे हैं आप लोगों की इम्प्रूवमेंट, अगर उस इम्प्रूवमेंट में आपकी चाहिए। आई डोंट एक्चुअली नेक्स्ट कि आपके अनफॉर्चुनेटली आई नो यू हैव ऑल के आप अपने बच्चे को गोद में उठाया है और दैट इज सर आपकी आवाज कट रही है, टोटली रिपीट करना। ये कि कोर्स कर रहे हैं ये हम सबकी बेनिफिट के लिए, एंड मैं नहीं चाहता कि हमारे इस कोर्स में
ऑन करके ले, क्योंकि इट इज अ वॉलंटरी, एंड जब जिसे आना है उसने फुल करके आना है, बच्चे गोद में बैठा के हमारे केस करके नहीं सुनना। दैट इज फॉर मी टोटली टोटली अनएक्सेप्टेबल। दैट शोज कि आपका अपना इंटरेस्ट हमारे कोर्स में कितना है, आपका बाकी सबके लिए कितना है। एंड यू हैव टू, आई एम श्योर कि यू कैन मैनेज योर बेबी फॉर एन आवर समवेयर एल्स एंड देन सिट एंड टॉक टू अस। आपकी वो कंसंट्रेशन ही नहीं होती अगर आपके बच्चा गोद में है और आपने एग्जाम में कर रहे हैं। कौन सा ऐसा दुनिया में कोर्स है जो आप कोर्स में बच्चे को साथ लेके अपने कोर्स में चले जाते हो और वहां बैठ के सुनते हो? इट इज नॉट एट ऑल फेयर ऑन एनीबडी, ना जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, ना हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं, और ना कोई और। बीच में बोलना ना बोलना, और अगर ऐसी चीजें होंगी, अगर आप इतने ही नॉन सीरियस हो, देन वी कैन थिंक अबाउट हाउ टू रन दिस कोर्स अगेन। सो दिस इज फॉर एवरीबडी। एंड डोंट टेल मी कि जी कि आपने घर में आप 1 घंटे के लिए भी ये मैनेजमेंट प्लान नहीं कर सकते जिसमें कोर्स में आपने मेन प्रेजेंटर जो है। But there are certain things which we have our norms and comms for this kind of course, and this is for everybody, and this is not only for you. ये पहले भी हुआ है, पहले भी पीछे बच्चों की आवाजें आती हैं, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बेटा। वो आपके लिए और हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, जो आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। सो कमिंग बैक टू दिस, ये जो भी है, लेकिन माए अगर आपने इसमें कोई टेक होम चीज लेके जानी है, वो सिर्फ एक ही एक है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू नीड टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट द डिजीज, नंबर वन। एंड नंबर टू, वट एवर यू बीन ट्रेन टू डू ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, मेजॉरिटी टाइम यू आर फाइन। और अगर कोई ऐसी साइंटिफिक चीज है जो आपके डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर वो एग्जाम में कुछ पूछे उसकी डिटेल्स में आपको आए, लेकिन बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। सिस्टोस्कोपी एंड ऑफ कोर्स कॉल्पोस्कोपी, ये तीनों चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों टोक स्टेशन आपके कभी भी, और आई एम श्योर इन टोक स्टेशन आप जाके कभी ये नहीं कह सकते कि कॉल्पोस्कोपी नहीं, मुझे तो पता नहीं ये है क्या, और हमारे डिपार्टमेंट में होता नहीं। A lot of other ways to go and see where it has been done. बहुत सारी और चीजें भी हैं कि जी वो किस तरह की। चलो, that's I think for now, and hopefully we'll see you next. Sir, जी hello, sir. Can I ask a question? जरूर। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर इसके प्लान में हमारे पास हिस्टेरोस्कोपिक आइडियली होना चाहिए था, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग और सर्वाइकल बायोप्सी होनी चाहिए थी। अगर उस पर बेनाइन लीजन आता तो हम लोग उसको पॉलीपेक्टमी कर लेते और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के अकॉर्डिंगली उसको मायरिना, और मायरिना की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसकी तो फैमिली कंप्लीट है। और सर अगर इसमें कोई सर्वाइकल कार्सिनोमा आता तो हम लोग एमआरआई करके स्टेजिंग रिपोर्ट के लिए बोर्ड से मीटिंग करके और इसके फर्दर स्टेजिंग तो पता हो जाती सर्वाइकल कार्सिनोमा के, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते। सर इसका यही प्लान होना चाहिए था ना, या कुछ और भी? मतलब इस वक्त पेप्समेयर की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेप्समेयर तो अब तो जो कुछ होना था सर वो सर्वाइकल कार्सिनोमा भी हो सकता था, या पेप्समेयर की आइडियली अगर ब्लीड ना करती ज्यादा, सिर्फ पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग होती और वो सेटल्ड होती, तो फिर हमें पेप्समेयर करके एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग और इस तरह करके फिर प्रोसीड करना चाहिए था। इसमें सिर्फ आपने जो एक और एड ऑन करना है, इन आइडियल सिचुएशन आपने इसकी 3 चीजें कर सकते थे। पहले तो हिस्टोपी थी, आपको पॉलिप का बेस पर चल जाए कि वो कितनी थिक है या कितनी थिन है, ठीक। उससे आपको क्या हो सकता था, क्योंकि इट कुड हैव बीन अ पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड। यस सर। हो सकता है इसकी बेस बहुत ब्रॉड होती है और करती है, और आप उसको जब रोटेट करते हो वो स्टार्ट ब्लीडिंग कर जाते हैं, कई बार होता है। तो हिस्टोस्कोपी पहले हम करके उसको देख के इसको निकाल के कर देते, हम सर्विस को क्लीन करके साथ ही हम कॉल्पोस्कोपी करके कर देते। कॉल्पोस्कोपी में इसलिए इसमें जस्टिफाइबल करनी बनती है क्योंकि शी हैज एन हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। और कॉल्पोस्कोपी उस जगह आती है जब कोई विजिबल लीजन नजर नहीं आपको आता, जो इसमें इनको नहीं आया। इनको सिर्फ हाइपरट्रोफिक सर्विस नजर आई।
उसका फायदा ये हो जाता है कि कोलपोस्कोपी का कि जी उसमें से आप उसका ग्रीन फिल्टर लगा के उसकी ब्लड वेसल्स को भी देख सकते हो कि जी किस तरह है। नंबर 2, अगर वहां पे आपको कोई ऐसा एरिया नजर आता है कि जहाँ से आपने डायरेक्टली बायोप्सी लेनी है ताकि अगर वो अर्ली कैंसर है तो वो कैन बी डिटेक्टेड, तो वहां से बेसिकली कोलपोस्कोपी करके वहां से बायोप्सी होगी, वहां से हमने पॉलिप भी निकाल दिया। उसके बाद इन दोनों की रिपोर्ट का वेट करेंगे। लेट्स सपोज के दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर हमने क्या करना है उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और जी हाँ इसको इजीली जस्टिफाइबल करना ऐसा है कि जी रिपोर्ट तो आपकी बेनाइन आ गई है, पर शी हैज सम प्रॉब्लम जो इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1 ईयर और सो। इसकी हीमोग्लोबिन इतनी फॉल कर गई थी कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। अभी भी उसकी जो एचपी है वो 9.1 है। आई विल नॉट बी कंफर्टेबल सेंडिंग दिस पेशेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, और ये नॉन कंप्लाइंसी है, कभी उसने 2 टैबलेट्स वो लाई कभी वो की, तो माय फर्स्ट चॉइस वुड बी गिविंग हर अ कंप्लीट सर्जिकल प्रोसीजर व्हिच कुड बी व्हाटएवर रूट ऑफ स्टेटमेंट। अगर देखें कि जी कि नहीं जी, अगर वो लेट्स सपोज वो कहती कि नहीं, सेकेंड ऑप्शन ऐसे पेशेंट के अंदर माइना कुड बी ट्राइड बट विद प्रॉपर काउंसलिंग कि जी इतने परसेंट ये काम करती है, इतने परसेंट यू माइट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन थर्ड कि जी अगर वो माइना भी अफोर्ड नहीं कर सकते फिर हम उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट डाल देते हैं। अगर आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में डाल रहे हो या माइना रख रहे हो, उसकी इवेल्युएशन हैज टू बी डन, अगर एवरी मंथ नहीं तो मैक्सिमम 2 मंथ्स के बाद, ताकि उसका पैटर्न ब्लीडिंग और हीमोग्लोबिन आप असेस कर सको 2 महीने के बाद, 6 महीने बाद नहीं बुलाओगे, ताकि उसके अगर तो शी इज कंप्लायंट और सब कुछ वो ठीक हो रही है, पेशेंट इज हैप्पी। और ऑफ कोर्स इसमें हमने आयरन बाद में उसको एड ऑन करना ही करना है, ताकि उसके रिजर्व्स करके हम उसको कंप्लीट करके देखें। एक बार वो सारा कुछ हो जाएगा 2 महीनों के बाद, फिर आपको नेदर 2 मंथ्स के बाद बुलाओगे एंड देन रीअसेस एंड डिसाइड कि आप क्या करके कितने अरसे तक आपने उसको डालना है। अगर आपका ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, नॉर्मली वो फिर ये करते हैं कि लेट्स सपोज आपको 3 मंथ्स डालने के बाद देन उसको स्टॉप करके दोबारा उसका पैटर्न देखो, वो करके देखो। पर कमिंग बैक टू दिस पेशेंट, डू यू थिंक शी विल बी कंप्लाइंट इनफ जो हर 2 महीने बाद आ जाएगी या हर 3 महीने बाद आ जाएगी, या उसे जब कोई इशू होगा तो तब वो आ जाएगी? यस उस सर। पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट का वेटेज ज्यादा हो जाता है। एग्जाम में कोई चीज राइट या रॉन्ग नहीं होती, इट इज हाउ यू कैन जस्टिफाई इट। जितना आप कंफर्टेबली जस्टिफाइबल करते थे, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो कहेंगे जी आप चेक में कर रहे थे, चेक में करते हुए कॉम्प्लिकेशन में यूरेटर डैमेज हो गया या फला चीज डैमेज होगी, वो भी होगी। तो देयर इज अ रिस्क फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ रिस्क फॉर एवरीथिंग। सर ये लेकिन मैं इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी कि फर्ज करें ये कार्सिनोमा, मतलब ये फिब्रॉइड जो होता है वो सर्वाइकल कार्सिनोमा है फर्ज करें, और मैंने रिमूव कर दिया, तो सर मैंने कोई गलत तो नहीं किया? मतलब ये ठीक था ना मेरी मैनेजमेंट में? सॉरी मैं समझ नहीं आई बात। सर मैं ये इसके कह रही हूँ कि अगर यही सर्वाइकल फिब्रॉइड, ये जो फिब्रॉइड है ये आपका ओके सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है, तो सर मैं ओके जस्टिफाइबल हूँ कि मैंने रिमूव कर दिया इसको, ऑस्टियोपैथोलॉजी ऑफ पे कोर्स, बाद में डायग्नोज हुआ है, मतलब हाँ कोई हाँ मसला तो बिल्कुल। ठीक है नहीं सर। वाई वुड, लेकिन वहां पे अगर वो कार्सिनोमा है तो आपकी मैनेजमेंट वहां पे रुकेगी नहीं ना, फिर देन फर्दर फिर जाएगी, नेक्स्ट, फर्दर हाँ जाएगी, फर्दर, फिर फर्दर जाएगी। कार्सिनोमा की स्टेजिंग होगी एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेजिंग मैनेजमेंट फिर हम आगे चलेंगे। सर अगर तो वो जेपीएमसी में हम लोग पहले बायोप्सी कर लेते थे, ठीक है, और बायोप्सी हमारी अगर बिनाइन आती थी फिर हम लोग पॉलीपेक्टमी करते थे, इसलिए दैट इज मुझे थोड़ा सा देखो वो उस जगह पे है जहाँ पे आपके पास ये उसकी कंप्लीट रिमूवल का तरीका नहीं है। बायोप्सी भी ठीक है, आपने तो बेसिकली डायग्नोसिस बनाना है ना। पूरा पॉलिप भिजवाएंगे किसी को लैब में तो उसकी रिपोर्ट बेहतर आती है रादर देन सिर्फ स्मॉल पीस लेते हुए। लेकिन वो आप वे आउट करते हो कि पीछे से उसकी बेस ये। और इसमें वन ऑफ द थिंग्स विच वी कैन ऐड इस, जो उन्होंने स्कैन कराया था वो अब्डोमिनल पेल्विक नहीं, वो टीवीएस भी होना चाहिए। उससे भी थोड़ा सा आपकी उसकी रिपोर्ट थोड़ी सी आपको मैनेजमेंट के लिए आसानी हो जाती जी सर, जी सर। है। सो अब्डोमिनल स्कैन चलो ठीक है, मैंने वो पूछा नहीं कि आपने अब्डोमिनल क्यों कराया। उसमें आई सपोज इन दिस केस की जी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है तो वी वुड लाइक टू सी के लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है, सारा कुछ ठीक है, कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, और एल्वेस और टीबी होना चाहिए टू सी कि जी की उसका बॉल का साइज कितना है और कहाँ से वो ग्रो कर रहा है। वो करके आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। बिनाइन आएगा तो ये करेंगे, मलिग्नेंट आएगा तो ये स्टेप लेंगे, अगर इनकंक्लूसिव आएगा तो फिर हमने ये करना। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक।
सर ओके मुझे बेटा। एक बात पूछनी है, इसकी हाइपरट्राफाइड जो सर्विक्स आ रही है, तो इसके जी बेटा। रीजन तो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई है, कोई इन्फेक्शन रहा हो, तो क्या हम इसको एंटीबायोटिक देंगे पहले देखो कोल्पोस्कोपी करने से पहले? बेटा, अगर तो आपका उसको सर्वसाइटिस का डायग्नोसिस है और इन्फेक्शन का है, कोई डिस्चार्ज नजर आ रहा है वहां पे, फिर तो आप डेफिनेटली दोगे। अगर वो नहीं नजर आ रहा तो फिर तो सर्वसाइटिस के बाकी साइंस भी तो होते हैं ना, सिर्फ जी जी सर्विस सर। तो हाइपरट्रोफी नहीं होती। नहीं सर, जैसे क्रॉनिक को अभी कोई इसको वजाइनल इन्फेक्शन ना हो, जैसे हम सीए सर्विक्स भी सोच रहे हैं ना, वो भी ज्यादातर वजाइनल डिस्चार्ज को फॉलो अप होके हो सकता है। तो अगर बेटा अभी वजाइनल डिस्चार्ज ना हो और अभी हाइपरट्राफाइड सर्विक्स है, तो हम देंगे एंटीबायोटिक या नहीं देंगे? देखो, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आती है, उसमें नॉर्मली एंटीबायोटिक दे डोंट वर्क एज अ रूटीन। जहाँ मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि एंटीबायोटिक देके सर्विक्स नॉर्मल साइज का नहीं हो जाता नॉर्मली। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जहाँ पे उसको जान डिस्चार्ज को वो ठीक कर देगा, लेकिन इन हाइपरट्रोफिक सर्विस को नॉर्मल नहीं करता वो एंटीबायोटिक सर एज फिर सच। हाइपरट्राफिक उसकी जो पैथोलॉजी, हाइपरट्राफिक जी जी सर, फिर हाइपरट्राफिक सर्विस के काजेस क्या हो सकते हैं सर? इसकी आप पैथोलॉजी समझ में आप नहीं आ खोलो, रही। उसमें से पढ़ लो, वो तो रीजन दिए हुए हैं उसमें, दैट इज वेरी सिंपल। उसका वो भी दिया हुआ है, ट्रीटमेंट प्लान भी दिया हुआ है कि जी अगर कोई डिस्चार्ज नहीं है, कुछ और नहीं है, तो उसका पहले आप स्मेयर लोगे, स्मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक फिर आगे चलोगे। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा उसमें जो डर लगना है वो तो सी सर्विक्स के लिए। यू नीड टू रूल आउट सी सर्विक्स, ताकि आप अननेसेसरी उसकी डिले ना करो CIN को, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। उसमें यही सारी चीजें आ जाती हैं। चलो सॉरी बेटा, आई हैव टू बी समवेयर, मुझे जाके अब आगे अगला वो काम शुरू करना है। थैंक यू देन सर। विल। थैंक यू सर। सर, ओके। थैंक यू सर।